Students, now again we will continue exercise 59. We will see the third question. See third question here. Find the perimeter of a triangle, two of whose sides are each 25 centimeter long and the third side is 36 centimeter long. Okay, this question we are going to solve. So see how to solve this question now. Exercise 59, third question we are going to solve. आंसर आई एम शोइंग यू. क्वेश्चन आपको नोटबुक में कॉपी करना है टेक्स्ट बुक में से. ओके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, टू ऑफ हुज साइड्स आर ईच 25 सेंटीमीटर. मीन्स साइड 1 is 25 centimeter, side 2 is 25 centimeter. टू ऑफ whose sides मीन्स दोनों साइड उसके सेम ही है. ओके, इसलिए हमने 25 सेंटीमीटर दोनों साइड को लिखा है. थर्ड साइड 3 is equal to 36 centimeter. Now we are going to solve, find perimeter. So perimeter of triangle is equal to, I am adding all these sides. Okay, 25 centimeter plus 25 centimeter plus 36 centimeter. Add this. You know that 25 plus 25 50. 50 plus 36, that is 86 centimeter. So you can write the answer. Therefore, perimeter of triangle is 86 centimeter. Okay, this is your third question. See now fourth question. Fourth question you have to solve yourself. आपको खुद solve करना है fourth question. Find the perimeter of a triangle, each of whose sides is 14 centimeter long. Means all three sides are 14 centimeter long. तो आपको उसकी perimeter find करनी है और एक साइड उसकी 14 centimeter है. Okay. Now question 5 we will see. Find the perimeter of the rectangle whose length and breadth is given here. So that we are going to solve now. Okay. Question number 5. Question is find the perimeter of rectangle. Okay. Now I am solving the B question. Length is given. Length is given 17 centimeter. Breadth is given 6 centimeter. Okay. So you have to write the formula of perimeter of rectangle to find the answer. Perimeter of rectangle is equal to, formula you know that, 2 into bracket length plus breadth Put the values 2 into bracket
17 plus breadth is 6 centimeter. 2 into 17 plus 6. 7 plus 6, 13. 1 carry, that is 23 centimeter. 23 multiplied by 2. 3 2s are 6. 2 2s are 4. 46 centimeter is the answer. Okay. Now I am solving the next question. D question. Length is 18 meter 65 centimeter. Breadth is 12 meter 15 centimeter. Okay. Perimeter is equal to 2 into bracket. लेंथ के लिए हम L भी लिख सकते हैं और B के लिए ब्रेड के लिए B. 2 into bracket L plus B. 2 into 18 meter 65 centimeter plus 12 meter 15 centimeter. ओके. आपको ये एडिशन करना है. स्टैंडिंग में कर रही हूँ मैं यहाँ पे कॉलम एडिशन. हमको पता है मीटर सेंटीमीटर का एडिशन कैसे किया है हमने. 18 मीटर 65 सेंटीमीटर, 12 मीटर 15 सेंटीमीटर, एडिशन 5 plus 5 10, 6 plus 2 8, 8 plus 2 10, 1 plus 1 plus 1 3. So it comes 30 meter 80 centimeter. Multiply with 2. ओके. सो मल्टीप्लिकेशन जब हम करते तो मैं यहाँ पे एक थोड़ा चेंज कर रही हूँ. 2 इंटू ए लिख रही हूँ मैं 30.80 मीटर. 2 zeros are 0, 2 8s are 16, 1 carry, 2 0 0, 1 as it is, 2 3s are 6. After 2 digit decimal point, 2 digit decimal point. So it is 61.60 meter. Okay. सिर्फ हमने इसको पॉइंट में चेंज किया है और मीटर लिखा है. ओके. कोई चेंज नहीं. इसका आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 61 मीटर 60 सेंटीमीटर. इट इज द आंसर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 6. सी हियर. Find the perimeter of the square each of whose sides is. Now your side is given of square. You have to solve and find the perimeter of square. Okay. I am going to solve B and D question. Okay. See how to solve it now. 6th question. I am solving D question. Find the perimeter of square. B question. 21 centimeter. Perimeter of square. इज इक्वल टू 4 इंटू साइड. आपको साइड लिखनी है पेरीमीटर में स्क्वायर की. तो 4 इंटू 21 सेंटीमीटर. मल्टीप्लाई दिस 84 सेंटीमीटर. नहीं आता है. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. ओके. नाउ डी क्वेश्चन.
आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइड इज इक्वल टू 11 मीटर 25 सेंटीमीटर. I am writing this in decimal point. 11.25 meter. Now formula we have to write. Perimeter of square is equal to 4 into 11.25. Now 4 5s are 20, 2 carry, 4 5s are 20, 2 carry, 4 2s are 8 plus 2, 10, 1 carry, 4 1s are 4, 1, 5 and 4 1s are 4. 45 meter. Yes, this is the answer of D question. Okay. Now see 7th question. The side of square lawn is 24 meters. Find the length of the fence around it. ये क्वेश्चन आपको खुद होमवर्क में करना है. दिस क्वेश्चन सी आपको साइड दी है स्क्वायर लॉन की 24 मीटर. यस, और आपको उसको लेंथ ऑफ फेंस फाइंड करना है अराउंड इट. तो क्या करेंगे आप? पेरीमीटर ही फाइंड करने वाले हैं स्क्वायर लॉन की. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लॉन इज इक्वल टू 4 इंटू साइड लिखेंगे आप, फिर आप लिखेंगे 4 इंटू 24 और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करेंगे. ओके, आई एम सॉल्विंग द 8th क्वेश्चन. द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर 96 meters and 74 meters respectively. A boy runs 2 times around the park. Find the distance covered by him. लेंथ और ब्रेड्थ आपको रेक्टेंगुलर पार्क का दिया हुआ है. आपको पहले पेरीमीटर फाइंड करनी है और जो बॉय है वो 2 टाइम्स पार्क के राउंड कंप्लीट करता है. तो कितना डिस्टेंस कवर करता है वो पार्क का, वो फाइंड करना है आपको. तो जब 1 टाइम उसका राउंड फिनिश होता है वो आपका होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क. यस, तो जो आंसर आपका पेरीमीटर का आएगा उसको ही आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 राउंड का डिस्टेंस मिल जाएगा. ओके, चलो कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं इसको. लेट अस सी दैट नाउ हाउ टू सॉल्व दिस. चलो 8th प्रॉब्लम आंसर आई एम राइटिंग. प्रॉब्लम आपको टेक्स्ट में से कॉपी करना है नोटबुक में. गिवन थिंग्स पहले हम लिखेंगे. द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज गिवन. सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, what is that? Length is given 96 meter. Okay, breadth of rectangular park is equal to 74 meter. Okay, now first what we will do, perimeter we have to find out. Perimeter पहले हमको find करनी है. Therefore perimeter of a rectangular park is equal to 2 into bracket length plus breadth is equal to 2 into लेंथ आपको दिया है 96 मीटर प्लस 74 मीटर. 2 into 6 plus 4 10, 1 carry, 9 plus 1 10 plus 7 17. Okay, meter. 17 2s are 34 and 1 0.
340 meter is the perimeter. Okay. A boy runs 2 times around the park. Okay. Boy runs 2 times around the park. Therefore, distance covered by a boy is equal to distance covered by boy is equal to, क्या करना है आपको, पेरीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है. ओके. तो आपको अच्छे से ये जो 340 मीटर है हमारा डिस्टेंस, वो क्या है, 1 राउंड का डिस्टेंस है. 2 राउंड के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 680 meter. So you have to write the statement now. Therefore, the distance covered by boy is 680 meter. Okay. You can write this as 6 meter 80 centimeter also. ऐसे भी लिख सकते हैं आप. तो ये हो गया आपका 8 प्रॉब्लम का आंसर. Now I am solving the 10th question. 9th question आपको होमवर्क में करना है. ओके. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 150 मीटर एट द रेट ऑफ ₹6 पर मीटर. आपको रेट फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है फेंसिंग का स्क्वायर पार्क के लिए. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. टेंथ प्रॉब्लम, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क. गिवन थिंग लिखने आपको, साइड ऑफ अ स्क्वायर park is equal to, what is that, 150 meter. Rate per meter is given to you. Rate per meter is equal to ₹6. So rate बाद में हम फाइंड करेंगे, पहले हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे. इसके फेंसिंग के लिए हमेशा हमको पेरीमीटर की जरूरत होती है. फेंसिंग मतलब एक कंपाउंड होता है आपका जो हम साइड में बनाते हैं. तो सी देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, व्हाट विल राइट, 4 into साइड, 4 into 150 मीटर. 15 4 जा, नहीं आता है 15 करने तो आप 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. 4 0 जा 0, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, 600 मीटर. एंड दिस रेट इज गिवन फॉर 1 मीटर. पर मीटर मतलब 1 मीटर का रेट है आपका ये, और आपको 600 मीटर का रेट अभी फाइंड करना है. तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू, total cost of fencing is equal to 600 multiplied by 6. 6 6 जा 36 and this 20. So ₹3,600. So write down the statement. Therefore, the cost of fencing square park is, the cost of
fencing a square park is ₹3,600. ओके, ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन का आंसर. Now I am solving the 12th question. 12th क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं हम. See, the perimeter of rectangular field is 164 meter. If its length is 50 meter, find its breadth. आपको पेरीमीटर दी है रेक्टेंगुलर फील्ड की, लेंथ भी दी है, आपको ब्रेड्थ फाइंड करनी है. तो ब्रेड्थ का भी फॉर्मूला आपको मैंने लिख के दिया है. ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू जो है वो हमको यूज करना है. तो फर्स्ट वी विल राइट द गिवन थिंग्स. पेरीमीटर is equal to 164 meter. Length is equal to 50 meter. Okay. Therefore, breadth of rectangle is equal to half into its perimeter minus its length. हाफ इंटू पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर का नंबर लिखना है आपको 164 मीटर माइनस 50 मीटर. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4. कटिंग डिवीजन क्या है मैंने यहाँ पे 82 मीटर माइनस 50 मीटर. आंसर इज व्हाट हियर 82 माइनस 50. 2 माइनस 0 2, 8 माइनस 5 3, 32 मीटर. तो ये हो गया आपकी ब्रेड्थ. देयरफॉर breadth is 32 मीटर. ओके, सेम वैसे ही आपका 13 क्वेश्चन. सी एवरीवन, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज गिवन टू यू 120 मीटर. ब्रेड्थ इज गिवन टू 27 मीटर एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ. लेंथ का फॉर्मूला यूज करके आसानी से आपको ये आंसर मिल जाएगा. सो हियर आवर perimeter of rectangular figure chapter is in. Yes, so assessment is given here. Question bag 1 you are going to solve in textbook. Okay, see the questions properly and write the answers. Very easy questions. Use the formulas to find the answer. See the question bag 2. This question you have to use your formula to find the answers. This you have to solve in textbook. ओके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एक्सप्रेस इट इन मीटर एंड सेंटीमीटर. आंसर आपको मीटर और सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है इसका. तो ये आपको नोटबुक में सॉल्व करना है. ओके, फाइंड द मिसिंग लेंथ, ये भी आपको नोटबुक में सॉल्व करना है. आपको यहाँ पे पेरीमीटर दी है और मिसिंग लेंथ फाइंड करनी है. तो पेरीमीटर में से आपको इनका एडिशन सबट्रैक्ट करना है. आपको ये आसानी से आंसर मिल जाएगा. और ये भी है वर्ड प्रॉब्लम, ये भी आपको नोटबुक में सॉल्व करना है. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है. ओके, सॉल्व द क्वेश्चंस प्रॉपरली एंड आस्क योर डाउट्स इफ यू आर हैविंग इट. ओके, बाय.